Okay, so today we are going to learn about chapter 2. Okay, so the chapter 2, what is the name of the chapter over here? We are not afraid to die if we all can be together. As I said you before, the message itself is conveying that if we are going to stand unitedly, no one is able to divide us, right? Divide is nothing but separate us. Okay, so the unity which is very, very important for us to do. If we are not having unity amongst us, it will create a very, very big problem in life. Okay, probably it can give you the praise, it can give you the happiness on start. शुरुआत में कुछ दे सकता है. When you get separated, you will feel हाँ, अब मैं separate हो गया. Now I will become the king or I will become the queen. No, it will be successful only for few days. बहुत कम दिनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं. Okay, as I said you should be very, very firm. Gossip करने की बात रहने दो या फिर और कुछ भी complain करने की बात रहने दो. ये दोनों भी बात बहुत आसान से कोई भी कर सकते हैं. It is very easy, right? Like if no one is there, obviously we used to sit together in group. इसने वैसे किया, उसने ऐसे किया, कंपेयर करने बहुत आसान होते हैं. लेकिन एक बार बोलो नहीं, उसने अच्छा है, ये किया है. Atleast behind जो बुरे बात बोलते हो ना, उस जगह पे you can talk about the things which are good. जो अच्छी चीजें उसके बारे में तुम बता ही सकते हो. उसका वैल्यूज ही कुछ अलग है. This story is also one type of a story which they had stood together. They had stood together. Like it is a dialogue which is proclaimed in the story. एक dialogue है, it is said by one of the person in the story, but it has become the main icon of the story title. Okay. So what they are doing? This story is written by Gordon Cook and Alan East. So Gordon Cook and Alan East is a very, very famous writer. They had written a story about a businessman who is 37-year old. 37-year-old. Okay. So he was having his wife. He is married. His wife name is Mary, I guess. Mary and his son Jonathan and daughter Susanna. Okay. So for the time being, there are nearly 4 characters: businessman, his wife Mary, his son Jonathan, and his daughter Susanna. Okay. So what their biggest dream of their life is to travel, to go for a voyage. What is the meaning of voyage? A journey which is done by sea. Probably we have a big intention of going through flight. Like, no, I have to go once in flight. Obviously, everyone will be having, right? But what this businessman is having, he want to travel through a sea. And that is also not for a simple thing. He want to go round the earth. मतलब क्या है? उनको पूरा दुनिया घूमना है. हम probably ऐसे ही बोलेंगे ना, नहीं मुझे दुनिया घूमना है करके, पर हम घूमते तो है नहीं, बता के रहते हैं कि नहीं हमको जाना है. दुनिया घूमने का छोड़ो, एरिया घूमने का ही बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के में, especially in this pandemic. So इसमें क्या हो जा रहा है करके देखो, the businessman, he is very, very intense. His great dream of life to take a round to the world through the sea route, through the sea route. Okay, ये उनकी लाइफ की बहुत बड़ी ड्रीम है. He has a very, very big dream about this. Let us go inside the chapter. So as I said you, the story is written by Gordon Cook and Alan East. The whole story is going to be say about the businessman who is 37-year-old. Mary, his wife, Jonathan and Susanna. Jonathan is 6, no? Yes. And what about Susanna? 7. Susanna, don't come up with new pronunciation. Okay? So what happened in this story? These are the characters for the time being. अभी चलते कौन से कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड होगा वो हम देखेंगे. ओके. He and his wife both dream of a voyage around the world on the ship Wave Walker. Now Wave Walker, what is the meaning of Wave Walker? वो भी read करते करते हमको पता चल जाएगा. Okay. Notice the expressions in the text, infer their meaning from the context. Honoring, savoring, this all text which has been provided, we will be going through in the between of these sentences.
और तब मैं तुमको बता दूंगी। ओके, अभी फिलहाल के लिए उसका थोड़ा होल्ड रखेंगे, फिर as soon as we start reading the meaning of those words you will be getting. Okay, in July 1976 my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susanna 7, and I sailed from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage. So Plymouth is nothing but name of the place in England. Duplicate is nothing but copy. They are like, he was a very very successful businessman in the name of business. So जैसे मैंने तुमको बोली थी कि वो he was having a very very highest dream of going for a voyage. Underline the word voyage and write a long journey by sea. A long journey by sea. The word voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill. Dreamt is nothing but dreamed. Dreamt is nothing but dreamed. Dreamt of sailing is nothing but traveling to sea. Sailing is nothing but sea traveling. Okay, going through sea. In the famous time, like the 37-year-old businessman, he was like usko inspiration when he was inspired 200 years earlier, before 200 years. When Captain James Cook were going for a seaway, right? When going for a voyage, 200 years के लिए उन्होंने voyage के लिए गए थे. So ये देखकर हमारे जो businessman है, उनका बहुत बड़ा inspiration हो गया. ये उनकी life inspiration हो गई, ठीक है? So अभी देखो, ये जो travel उन्होंने एक पूरे world में करते हैं ना, एक पूरे world में इन्होंने जो travel करने जा रहे हैं ना. So it is not a simple travel. पूरे travel कुछ 3 साल का होने वाला है. Full travel, like 3 years. When you are going to travel from one place to another place for 1 day or 1 night or 2 days or 4 days or 5 days, उसके लिए हम कितनी तैयारी करके जाते हैं? अभी 3 साल है तो कहाँ से तैयारी करेंगे भाई? कुछ पाइप थोड़ी लगा के जाएंगे गैस के लिए समुद्र के अंदर. ऑब्वियसली वैसे कुछ काम नहीं आने वाला है, राइट? व्हाटएवर चीज उसके लिए उनको तैयार करके जाना है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट विद अ डुप्लीकेट कॉपी. मतलब अभी इसमें इन्होंने 16 years स्पेंड करके लेजर टाइम इज नथिंग बट फ्री टाइम. उसमें लेजर दिया है, we have spent all our leisure is nothing but free time honing. Underline the word honing. It's nothing but sharpening our seafaring skills. Underline the word seafaring. Seafaring is nothing but regularly traveling by sea. Regularly traveling by sea. So see, honing our seafaring skills. Underline the word which is given for you in the text. Notice this expressions करके दिया है ना, वो पूरे लाइन वहाँ पे underline करो. What that word actually means in this context is improving the skills required to travel by sea. Right? Improving the skills required travel by sea. To travel by sea. In British waters करके लिखा है. तो in British waters करके तुम मत लिखो, मैं बता रही हूँ. Like our seafaring skills in British waters. British waters is nothing but जो abroad, United States, UK, British waters, वहाँ पे जो sea है, तो उसमें travel करने उनकी बहुत बड़ी ड्रीम. It is their lifetime dream. देखिए,
Our boat, Wave Walker. Wave Walker is nothing but home of ship. Home of ship. Home of ship. उनके जो बोट था ना, उन्होंने एक डुप्लीकेट बोट इसके लिए प्रायरली बनाए थे। क्यों बनाए? बिकॉज और किसी की बोट 3 साल के लिए भाड़ा के लिए तो नहीं ले सकते भाई, इसके लिए हम बना ही देंगे। और उतनी कैपेबिलिटी, उतनी कैपेसिटी इस बिजनेसमैन के अंदर था भी। He was already having that capacity to make a boat, so he made a boat. और वो बोट का नाम क्या रखे थे? Wave Walker. So that is the reason I said home of a ship करके बोली थी ना, सॉरी वो name of a ship होगा, सॉरी। ओके, चलता है देखो। ओके, so it is nothing but a 23 meter 30 ton wooden hull. A 23 meter 30 ton, इतने बड़े शिप है देखो। Wooden hull. What is the meaning of wooden hull? Underline the word wooden hull. बहुत सारे मीनिंग्स आएगा इसमें। ओके, water bodies. Water bodies. Water bodies, comma. A water height body of a ship. A water height body of a ship. So probably एक शिप पे समझो ये वुडन हल इज नथिंग बट तुम्हारी यही आएगा। ये जो शिप का बॉडी जो रहता है ना, वो शिप की बॉडी कितने हाइट तक पहुंचती है। सो वो हाइट, ये जो विड्थ रहेगा यही तुम्हारे लॉन्ग, तुम्हारे 23 मीटर्स की होगी। ओके, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, हाँ बहुत हाइटेड है। ओके, सो देखो, our wave walker, a 23 meter 30 ton wooden hull beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. So इस जगह पे इन्होंने क्या बोल रहे हैं, like 16 years हमने प्लान करके बहुत सारे महीने तक हमारे निकला था किसके, ये शिप बनाने के। और ये शिप को हमने ऐसे तैयारी की है, ऐसे कोई नॉर्मल पीपल आएंगे ना उनसे तैयारी नहीं की। प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मतलब क्या है, उसके लिए जो स्पेशली स्पेसिफाइड है, जो स्पेशलाइज्ड है उस काम के लिए, तो उन प्रोफेशंस के हाथ से हमने ये वेव वॉकर बनाए थे। और ये वेव वॉकर बना के भी हम ऐसे ही नहीं छोड़े थे, वी हैड टुक इट टू द रफेस्ट वेदर। रफेस्ट वेदर इज नथिंग बट हार्ड, रफेस्ट इज नथिंग बट हार्ड, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रहती है, वहाँ पे उस जगह पे सब हमने डेमो करवा के देखे थे। क्यों? बिकॉज 3 इयर्स की ट्रैवल है हमारी, सो 3 इयर्स का ऐसे ही काम तो खत्म तो होगा नहीं, राइट। तो वो सक्सेसफुल होने के लिए हम सारे वेदर कंडीशन में, सारे तूफान की जगह पे ऐसे हमने आर्टिफिशियली भी तैयार करके थोड़ा हमने टेस्ट करवाए थे। एंड ऑल दी टेस्ट वॉज सक्सेसफुल, ऑल दी टेस्ट वॉज सक्सेसफुल। ऐसे कोई टेस्ट ऐसे गया नहीं था, सारे टेस्ट उनकी सक्सेस हुई थी। सो सक्सेस होएगा तो उन्होंने क्या सोचेंगे, हाँ अब सब ठीक चल रहा है, तो दिस इज द टाइम फॉर मी टू टेक द शिप टू द मोल्ड, टू द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे मेरे को डेमो सब हो गया। अभी असली पिक्चर में मैं इस वेव वॉकर को मैं ले जाऊंगा। ओके, द फर्स्ट लेग, हियर द मीनिंग ऑफ लेग मतलब पैर नहीं है, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज या फर्स्ट पार्ट, इनके जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ आर प्लांट 3 ईयर। सो प्लांट कितने साल के लिए किए, 3 साल, 3 ईयर, दैट इज 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली as we sail down the west coast of Africa to Cape Town. Cape Town is nothing, it is again it is in South Africa, लिख के रखो याद नहीं रहेगा तो। Then before heading east we took on 2 crewmen, American Larry Gittin and Swiss Herb Sigler. So क्या है करके देखो, इन्होंने फर्स्ट 3 इयर्स का प्लान कर लिया इन्होंने। सो सक्सेसफुली इनकी 1,05,000 जर्नी वॉयज वो तो सक्सेसफुली हो गई। कहाँ से, अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक। केप टाउन इज नथिंग बट इट इज अगेन देयर इन साउथ अफ्रीका। वहाँ तक इनकी जर्नी प्लेजेंटली इज नथिंग बट बहुत खुशी से वहाँ तक इनकी जर्नी बहुत अच्छे ही हो गई।
Therefore before heading the east, मतलब before heading the east मतलब क्या है, दूसरी जगह ट्रैवल करने के पहले हमारे जो कैप्टन है ना जेम्स कुक, ऑब्वियसली इनको तो चलाने नहीं आएगा राइट, जेम्स कुक को भी रखे थे। तो इन्होंने क्या बोले, बहुत बड़ा बहुत बड़ा शिप है भाई, अकेले में संभाल नहीं पाऊंगा, सो आई वांट द असिस्टेंट। सो असिस्टेंट के नाम पे इन्होंने किसको अपॉइंट किए, दे अपॉइंटेड 2 crewmen। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ crewman? अंडरलाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ crewman? द पर्सन हु इज वेल प्रोफेशन फॉर ड्राइविंग इन शिप, या फिर उनको शॉर्ट में लिखना है तो शिप ड्राइवर करके, ओके। बट दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल्स, ऐसे ही ड्राइवर नहीं है, दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स लिखो, ओके। वॉट एवर यू फील कंसर्न में, मैं जो बोल रही हूँ तुमको जैसे समझ में आ रहा है, और हो सकता है कि मेरे बोलने का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा समझ मतलब थोड़ा आसान नहीं रहेगा, तो उस जगह पे तुमको और कोई आसान वर्ड करे, इफ यू आर गेटिंग एनी सिंपल वर्ड सो वो लिखिए, ठीक है। प्रॉब्ली मैं वैसे ही करती हूँ, ओके। सो व्हाट आर द 2 crewmen? crewmen मतलब क्या है, जो शिप ड्राइव करते हैं उनको ही crewmen करके बोलते हैं। एक है अमेरिकन लैरी मिजल, ये सब कैरेक्टर्स हैं, हाँ, ही इज फ्रॉम अमेरिका, एंड अनदर वन इज स्विस हर्ब सिगलर। Swiss Herb Sigler again is from Switzerland. So these are the characters. So कौन बोला ये? जेम्स कुक ने क्या बोले? I want some assistant. So these people decided and they brought both of them over here to help us one of the world's roughest sea, the southern Indian Ocean. So now your journey is actually starting. शुरुआत कहाँ हुआ था? शुरुआत कहाँ हुआ था? अफ्रीका से लेकर कैपटाउन तक ऑलरेडी एक जर्नी हो गई। That journey consisted of 1,05,000 kilometers. Now they are going to decide to travel to the eastern coast. For them, it is the eastern coast, and it is the roughest sea. It is none other than our Indian Ocean. हमारे Indian Ocean के तरफ आ रहे हैं। So as because of the roughest sea, as because of some complications थोड़े ऊपर नीचे होएगा, उसके लिए like we want the professionals, जो इससे अच्छे से आता है, professionals के लिए they decided and set this 2 assistant crewmen for the supporting. Okay, see after that what happened. Our second day out of Cape Town, we began to encounter the strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. So what again we are saying, like gales मतलब बहुत तेज से हवा आने लगी, बहुत तेज से, you know, it was not एक तूफान जैसे, एक स्प्रे जैसा आने लगी, like बहुत तेज से, and probably you know, सी में जो हवा आती है तो कैसे आएगा वो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रेन ड्रॉप्स जैसा, उसको विंड जैसा आता है, देखो पानी के साथ साथ आके गिरते हैं ना, इट वॉज वन टाइप ऑफ अ गेल, उसको मैं चेक करके तुमको बोलती हूँ हिंदी में क्या बोलेगा करके। तो मतलब क्या है, उतनी ज्यादा हवा आई थी, लेकिन हवा देख के भी, ये कौन बोल रहे, हमारे बिजनेस मैन बोल रहे कि हवा देख के भी मुझे उतना डर नहीं लगा था, बिकॉज द वेव्स वॉज अलार्मिंग। अलार्मिंग मतलब क्या है, वेव्स अलार्म बज के कुछ आते नहीं है, वेव्स इतनी बड़ी है, वेव्स आर सो लॉन्ग, इट वॉज समवॉट ऑफ 15 meters, इट वॉज समवॉट ऑफ 15 meters, 15 meters, मेन मास से भी ऊपर। What is the main mast over here? My drawing is very bad, please don't worry about this, okay, it's just for your understanding. So ये जो main mast है, ये main mast तक आ गया, जो waves आया था ना, वो waves इतनी बड़ी आ गए, so ये जो main mast में भी उसका मेरी असर पड़े, so वो mast देखकर ही मेरे को बहुत डर लगा था, okay? Gales का जो ना mast भी बहुत heavy था इसमें। December 25,
found 3,500 kilometers east of Cape Town, despite atrocious, underline the word atrocious, it's nothing but terrifying, atrocious, terrifying, terror, जो भी तुम चाहते हो. We had a wonderful holiday complete with Christmas tree. New Year's Day saw no improvements in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for weeks. So क्या था? अभी देखो ऑलरेडी उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी उनकी हो गई और ईस्ट ऑफ केप टाउन ट्रैवल करने पर नियरली 3,500 किलोमीटर होते होते ही they crossed, they reached December 25. They had a very wonderful Christmas. Christmas के लिए उन्होंने बीच में समुद्र से बीच में रोके कहीं जाके केक कटिंग कुछ करने के लिए गए थे because they were on the mid of sea and they enjoyed on the place where they were. जहाँ पे उन्होंने थे वही उन्होंने बहुत अच्छे enjoy किए and gosh they were like thinking that New Year तक सब ठीक हो जाएगा, New Year होने बाद सब ठीक हो जाएगा. That was their intention. कुछ बदली हो जाएगी. क्यों? अभी ही वेव्स ज़्यादा हो रहे, so मैं यही का सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर तक थोड़े बहुत वेव्स भी कम हो जाएगी and there will be a good improvement. But actually हुआ क्या था? Good improvement की जगह पे पूरे bad ही हुआ. The condition was becoming worse because what is the reason? Traveling between the sea is not a cup of tea. ऐसे कुछ आसान बात नहीं है और उन्होंने रफेस्ट वेदर में डालने बोलो या फिर कोई प्लेड वेदर में डालने बोलो, the thing which is going to come for us on the reality is very different. हमने ये बोल सकते हैं नहीं मैं कर लूँगा, ये मेरे से हो जाएगा. Actually this is something which is very pathetic, right? Because उन्होंने कोई भी वेदर में ले जाने दो, लेकिन जब एक्चुअल शुरुआत हुआ था जर्नी तो तब तो दिक्कत आ रही थी, राइट? जहाँ पे और सी का तो हम इट इज नेचर. सी तो हमने हमारे साथ ये नहीं बोलने वाला है भाई मैं अभी 3 साल के लिए रेस्ट ले रहा हूँ, तेरे को घूमना है तो अच्छे से घूम ले, फिश पकड़ ले, जो चाहिए तो कर ले करके. The sea is not going to say anything like that. It is totally going to depend upon the atmosphere. It is totally going to depend upon the nature. We can't say the sun and the moon, you don't come today, I am angry on you. और तुम्हारे उतना सुन के भी वो कुछ करने वाले भी हैं, right? So इसमें क्या है? That is the reason it is very complicated. उन्होंने रफेस्ट वेदर सब में उन्होंने करके तो आया था, लेकिन अभी उनके जो बैड थिंग थी अभी इसी वक्त जस्ट शुरुआत हो रही है. द कंडीशन इज बिकमिंग वर्स. हाउ? At down on January 2, the waves were gigantic, or you say as gigantic, whatever you think. It's nothing but very huge in size. बहुत बड़ा huge था size में. अब dawn is nothing but first appearance of light of the sunrise. First appearance of light in sunrise. ये कब हो रहा है? January 2 में. The waves started on a very gigantic way. बहुत बड़ा साइज में बहुत huge waves आने शुरुआत हो गई. We were sailing. Sailing is nothing but traveling in ship with only a small storm jib. What is the meaning of jib? A triangular stay set forward of a mat. A triangular, लिखो मैं समझा देती हूँ, जिक्र करते हो. A triangular sail stay set forward of the mat. A triangular sail stay set forward of the mat. So what is the meaning of this? Probably if you see like बड़े ships जो होती है ना, वो ships के लिए life boats होती है. You guys might have seen that in the Titanic movie. How many of you seen this?
and we're still making 8 knots. Knots मतलब it's nothing but बांध के knot बनाते ना, उसी को knots करके बोलेंगे. As the ship rose to the top of each wave, we could see an endless, enormous sea rolling towards us. Enormous, again, it is a very large size. A very large in size, enormous, meaning is sea is rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the stone jib and lashed a heavy mooring. So मतलब क्या है, जैसे ही हमने चल रहे थे, जैसे ही हमने रास्ते में जा ही रहे थे, जाते जाते लाइक यू नो पहले बहुत गिगैंटिक वेव्स था, अगेन इट वाज वेरी लार्ज इन साइज. जितने हमारे नजर जिधर तक गया था उधर तक बड़े बड़े वेव्स था. वो हमने लाइक सपने में भी नहीं सोचे उतने बड़े वेव्स की, लेकिन उतने बड़े वेव्स था. और तुमको पता है ना, वेव्स रहते हैं तो सी समुद्र का आवाज भी बहुत आती है, सी वेव्स का भी बहुत आवाज आती है. सो ये आवाज, ये जो वेव्स की जो मतलब हमारे विजन से भी हम जब देख रहे हैं तो विजन से भी हम देखने में भी हमको डर लग रहा है, इतनी बड़ी वेव्स आ रहे हैं सामने करके. और सुनते ही हमारे ये जो विंड का साउंड, जो हवा की जो साउंड आ रही है, जो वेव्स की जो साउंड आ रही है, वो भी साउंड यू नो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस चीज है. ओके, सो उन्होंने बोले थे नहीं अभी शिप को हम स्लो डाउन कर देना चाहिए, वी हैव टू स्लो डाउन द शिप. सो हमने जीप को थ्रो किए थे, ड्रॉप दी स्टोन जीप एंड लैश्ड टू अटैक. Lashed is nothing but to attack. And mooring, the word mooring is given over there, a heavy mooring, an act of making fast. Lashed is nothing but to attack. Lashed is a separate word. Mooring is nothing but an act of making fast. So मतलब क्या है, कुछ होने वाला है इस जगह पे. So let us make the work fast. थोड़ा स्पीड अप करेंगे. अभी इन्होंने रोकने वाले थे, फिर सोच रहे स्पीड अप करेंगे. Row in and look across the stern. Stern is nothing but straight. Then we double lashed. Everything went through our life raft drill. Underline the word life raft drill. Meaning what do you? Attached lifelines, don oilskins and life jackets and waited. Life raft drill is nothing but an exercise conducted on board. An exercise conducted on board every ship to familiarize. Every ship to familiarize crew C-R-E-W crew and passengers with how to manage danger. And passengers to how manage danger. With to how manage danger. So life draft drill is nothing but वहाँ पे like कोई चीज खतरा होने वाली है. The thing which is going to go out of hand. हमारे हाथ से अभी निकलने वाले हैं. We came to know that we are going to die. We came to know that we have to fight for our life. हमारे जान अभी खतरा में है, हमको फाइट करके उसमें से फार करके आने का है. सो इसके लिए लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल इज नथिंग बट उन्होंने पैसेंजर्स को लाइक सामने से ये बोलेंगे, प्रोबेबली जो बहुत बड़े ऑपरेशंस होती है, समझो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, यू गाइस आर फ्रॉम बिग ग्रुप, इसमें शायद तुम्हारे साइंस में भी काम आएगा. क्या होता है पता है, बड़े बड़े ऑपरेशंस करने के पहले पेशेंट्स जो आते हैं, whenever the patients are coming, the patients will be coming like full of upset, full of fear. बहुत fear लगता है, कितने भी बड़े लोग रहने दो, fear जो डर रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली कैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का या कोई चीज़ हमने लाइक यू नो बियॉन्ड की चीज़ में करने का क्या हो जाती है, डर बहुत बढ़ जाती है. और जैसे ही डर बढ़ेगा द पेशेंट कैन फेंट, चक्कर आके गिर सकता है, पेशेंट की कंडीशन और भी बर्बाद हो सकती है. क्या है, whenever we are going to do something, कॉन्फिडेंस हमारे बहुत ज़रूरी है. कॉन्फिडेंस कैन डिसाइड द लेवल ऑफ आर थिंग. हमारे कॉन्फिडेंस अच्छे रहेगा तो समझो वी कैन फार इट ऑल्सो.
जो चीज़ हमारे पॉसिबिलिटीज है नहीं ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, फिर भी हमने पार करके आए रहेंगे ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स ने क्या करते हैं पता है, दे विल एक्सप्लेन इट, ऑपरेशन थिएटर रहने दो या कोई भी चीज़ रहने दो, पेशेंट्स डर जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन करेंगे सामने से, उन्होंने ये बताएंगे नहीं ये एक्सपीरियंस होने वाला है, सॉरी ये ऑपरेशन होने वाला है तुम्हारे, दीज आर द थिंग्स आर गोइंग टू बी यूज, ये भी हम यूज़ करने वाले, इसका कोई चीज़ नहीं, बहुत अच्छे से बहुत आराम से बैठ जाओ, कुछ होने नहीं वाले है। डॉक्टर्स बोलेंगे ना सुई लगाने के बाद कुछ नहीं होगा, बस टीटी काटने जैसे रहेंगे, सुई तो लगा देंगे उन्होंने, पर क्या करेंगे, दे आर मेकिंग अस टू क्वाइट कॉन्फिडेंट, तब वो बोलने वक्त हमारे फियर थोड़ा निकल जाए। सेम चीज लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल में वही दिया है ना, सॉरी राफ्ट ड्रिल, नॉट ड्राफ्ट, इट्स राफ्ट। लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल इज नथिंग बट द क्रू आर ड्रिलिंग समथिंग ऑन द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को वही बोल रहे कि कोई चीज कोई खतरा आ रहा है, यू आर गोइंग टू मैनेज, तुम वो सामने करने वाला, यू आर गोइंग टू फाइट, यू आर गोइंग टू फाइट फॉर योर लाइफ, ओके, तुम्हारी लाइफ के लिए तुम अभी झगड़ा करेंगे और बी रेडी। हो सकता है लाइफ जैकेट, उसमें लिखा है देखो, अटैच लाइफ लाइन, ऑयल स्किन्स, लाइफ जैकेट, ये सब मतलब जो भी चाहिए हमको जंप करने, या कोई अगर समझो शिप भी अगर उल्टा हो गया तो भी हमारे जान खतरा में हो जाएगा, तो हमको सारे चीज लाइफ जैकेट से लेकर सब हमको रेडी रखना है। लेकिन लाइफ जैकेट्स भी उतने ही सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर लाइफ जैकेट सपोर्ट करता तो हमारे वो जो मूवी था उसमें सपोर्ट किया रहेगा, राइट, बट तो उतना सपोर्ट नहीं करेगा, इट इज ऑल्सो हैविंग ए लेवल ऑफ टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर में रहेगा बहुत, यू नो मिडिल ऑफ द सी, रात के वक्त तो बहुत बहुत कोल्ड रहेगा, यू नो इट गोज ऑन माइनस, बहुत खतरा में रहेगा, ओके। सो देख, the first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Ominous silence. Underline the word ominous silence. Ominous silence is nothing but an unpleasant of threatening. Unpleasant of threatening. मतलब unpleasant of threatening. Unpleasant of threatening. Threatening मतलब क्या है? Frightening. Frightening मतलब क्या है? डरा। Okay? So unpleasant, which is not happy. बहुत silently. Unpleasant of threatening in silence करके लिख दो, तब समझ में आएगा। मतलब बहुत silently, हमको पता भी नहीं चल रहा था कितना बड़ा खतरा रास्ते में है, कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस अ लॉट, हमारे ये बहुत बड़े इम्पैक्ट्स देने वाला है, ऐसे हम सोचे भी नहीं थे। The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. Aft, A-F-T, aft. Underline the word. Aft is nothing but you can write near or at. Near or at. With horror, I realized that it was not a cloud, a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful grating crust. So मतलब क्या है? 6 बजे ये हो रहा है ये बात। So बहुत साइलेंटली, ऑब्वियसली तुमको कुछ अगर नेचुरल कलामिटी कुछ अकर होती है ना, होने के पहले तुमको बहुत सारे असर दिखाएगा, लाइक एनिमल्स बार्क करने शुरुआत करेंगे, बहुत सारे लाइक बहुत असर दिखेगा, बट होने के जगह पे, होने के वक्त इट विल बी कमिंग वेरी वेरी साइलेंटली। और इन्होंने देखे थे उसके अंदर जो पैसेंजर्स इतने लोग जो थे वो लोग देख रहे थे, क्या देखे थे, अरे अचानक क्लाउड इतने डार्क क्यों हो गया, इतने डार्क क्यों हुआ, और क्लाउड इतना पास पास क्यों दिख रहा है। तो अच्छे से देखा तो वो क्लाउड नहीं था, इट वॉज द बिगेस्ट वेव,
बहुत बड़े वेव है। एक वेव बादल जैसा दिखता है तो समझो वो कितना हाइट में रहेगा। इट वॉज ट्वाइस द हाइट ऑफ द वेव्स। उसके पहले जो वेव्स था ना उससे भी ट्रिपल टाइम्स हाइटेड था उसका। कौन सा? वो वेव्स बहुत हाइटेड थी। इट वॉज परफेक्टली वर्टिकल, frightful breaking crust. Crust is nothing but middle. Crust is nothing but on the top. On the top. So मतलब बहुत वो टॉप का एकदम ब्रेक करके पूरे गिरने वाला है। Okay? The roar increased to a thunder as the storm moved up the face of a wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. Deck is nothing but floor of the ship. जैसे वो वेव आता है, वेव जब शांति से आते हैं तभी ही आवाज आ रही है, तो इतनी बड़ी वेव वहां से इतने दूर से आ रहा है तो कितने रॉर, कितने बड़े आवाज दिया रहेगा। जस्ट इमेजिन कितने बड़े आवाज दिया रहेगा। लेकिन उस आवाज आने वक्त लाइक बिजनेसमैन जो थे उन्होंने वही सोचे थे वी कैन राइड इट आउट, हम इसको पार करके आ जाएंगे। लेकिन जैसे उनके सोच था वैसे था नहीं। इट वॉज वेरी वेरी ट्रेमेंडस, बहुत ही बड़ा वेव था। इतनी रॉर आवाज में मतलब ऐसे लग रहा था कि ये आवाज से ही मैं अभी मर जाऊंगा। इतनी बड़ी आवाज है, ये आवाज सुनते ही मैं अभी मर जाऊंगा, वैसे सोचता हूँ। ओके, लेट मी कंप्लीट। A torrent of green white water broke over the ship. My head smashed into the beam, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and I was losing consciousness. I felt quite peaceful. So मतलब क्या है, वो डेक का जो फ्लोर रहता है, इतनी बड़ी तेज वेव आ रही है, so डेक की जो फ्लोर होती है ना, फ्लोर पूरे भर गया था। डेक इज नथिंग बट अ फ्लोर ऑफ अ शिप। तो फ्लोर को भी पार करके ये क्या बोल रहे हैं, मेरा हेड है ना स्मैश हो गया। स्मैश मतलब बहुत तेज से लग गया और मुझे पता चल गया कि अब मैं मर जाऊंगा। आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट माई डेथ, मेरे डेथ को भी मैं एक्सेप्ट करने रेडी था। आई वॉज लूजिंग माई कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, मैं मेरी कॉन्साइंस को लूज कर रही हूँ, मैं अभी होश में हूँ, मैं होश ही भूल रहा हूँ। एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल मतलब क्या है, ये उनकी जान जाने की चीज आ गया कि हाँ मेरा अभी हो गया, मेरा लाइफ होने वाला है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, और सब हो गया मेरे जैसे, सबका ये भी चले जाएगा। अंडरस्टैंडिंग। सो ये बस शुरुआत है, इसमें वेव्स का इन्होंने कैसे हैंडल किए, कैसे टैकल किए, वो सब हम देखेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजे आएगा और इसमें हमको सीखने भी बहुत मिलेगा। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।